I think as far as Swasth Kavach is concerned, it's one of the most beautiful and precious things. It's a gift to the society by Dr. Bishop Mohan and DMC, because what they are doing is they are training kids of the age of 12, 14. If there's a sudden heart attack, if there's a sudden issue in the society, in your house, you can save the patient, because we are always told if there's a heart attack, first aid is very important. Now, these kids, they know how to give CPR so that the person can be sustained till he reaches the hospital. That's again a very good gift. Then what happens is, when the kids are being told about blood pressure, they are also being taught the negatives of blood pressure, how negative blood pressure can ruin their lives. So what happens is, a kid of 14 or 16 years, when he tries to get a pizza from his mobile, that thing comes to his mind. No, my mother has cooked 2 chapatis with gobi ki sabji. It would be very prudent in case I have aloo gobi or shimla mirch with roti and dahi, rather than having a 700 rupees pizza. Yes. That comes to his mind. Then it comes to his mind that if I get obese and tomorrow if I have to be hospitalized, because I have learned that means 20 lakh rupees of expenditure and lying at a bed. I won't be able to impress my girlfriend. If my girlfriend is told at the age of 22 that I am that unhealthy, that I have to spend 20 lakh rupees and I have to lie on a hospital bed, I won't be able to impress her. I'll be able to impress her only if I'm healthy, if I am able to sustain my body, and if I know about the system around, and if I'm aware about the health. So that is, I think, Mission Swasth Kavach is a great boon to the society. And I asked Dr. Bishop Mohan, as our friend asked, that this Mission Swasth Kavach should not only be limited to Ludhiana, it should be spread in the entire state of Punjab, rather in the entire country. Mission Swasth Kavach should be spread. And I'll even request, since I visit the PM on a regular basis, I'll request the Prime Minister office and central government also to join hands with Dr. Bishop Mohan and DMC, so that this could be spread throughout the country. The Bhangra which we are having Yes, sir. of 50,000 students, this Bhangra should be done in the entire country, so that people celebrate in a healthy manner. Wow. And even people of 60 years of age, they are ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਵਰਮਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਜਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਿਲਰ ਹੈ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵੰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰਡਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਔਰ ਅੰਕਿਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਈਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਆਏਗੀ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵੰਡਰ, ਉਸ ਲਾਈਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਲਈ ਅਗੇਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਸਾਂਝਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ, दयानंद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ਦਾ ऑब्वियसली मैं गुड मॉर्निंग टू ऑल व्यूअर्स ऑफ टाइम्स पंजाब टीवी। मैं हूं आपके साथ शिप्रा। एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव 1-to-1 इंटरेक्शन लेकर आज मैं आपके साथ रूबरू होने जा रही हूं। बात करेंगे इंडियन मेडिकल फैसिलिटीज की। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत की, हमारे इंडिया की जो हेल्थ सिस्टम है वो काबिले तारीफ है और सबसे ज्यादा बेस्ट है, और उसको लेकर पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव बहुत खूबसूरत कदम उठाया जा रहा है। लुधियाना सिटी की आज तस्वीरों से हम आपको रूबरू करवाएंगे, जहाँ पे मिशन स्वस्थ कवच, जी हाँ, मिशन स्वस्थ कवच एक ऐसा खूबसूरत इनिशिएटिव जो डीएमसी एंड हॉस्पिटल्स की तरफ से उठाया गया है, जहां पर स्कूल के जो टीचर्स हैं उन्हें पब्लिक हेल्थ मेंटर्स की तरह प्रेजेंट किया जाएगा, जो अपने स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे कि किस तरीके से हम हेल्थ के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि लगातार जो डिसीजेज है वो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अनहेल्दी हो चुका है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, और हमारा जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत बढ़ चुका है। लेकिन अब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, वो हम सभी के हेल्थ के ऊपर ध्यान रखेगी। बीपी मॉनिटर किया जाएगा, सीपीआर की तरफ ध्यान दिया जाएगा, और बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको मिलवाना चाहेंगे हमारे देश के बेहतरीन इकोनॉमिस्ट, जिन्हें
किसी फॉर्मल इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। मिस्टर आकाश जिंदल आज दिल्ली से लुधियाना तक पहुंच चुके हैं। आज उनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं। सर, स्वागत करना चाहेंगे सबसे पहले आपका लुधियाना में। सर, बीइंग एज ए इकोनॉमिस्ट, हमने आपको देखा है कि किस तरीके से आप भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करते हैं। अलग अलग चैनल्स में हमने आपको देखा है और बहुत बुलंदी से, बहुत अथॉरिटेटिव वे से आप आवाज उठाते हैं। इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी जरूर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मिशन स्वस्थ कवच। सर, सबसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि आप हमें बहुत हेल्दी लग रहे हैं, बहुत फिट लग रहे हैं, कैसे आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने में मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता होगी, क्योंकि लोगों को ये जान के हैरानी होगी, सुबह 4 बजे मैं दिल्ली में जॉगिंग शुरू कर देता हूँ। 7 किलोमीटर की जॉगिंग करता हूँ। हम लोगों की जॉगिंग की एक इनफॉर्मल एसोसिएशन बनी हुई है और मिट्टी का बना हुआ ट्रैक है जिसपे हम जॉगिंग करते हैं, बिकॉज मुझे एडवाइस किया गया है कि कच्चे ट्रैक पे जॉगिंग करोगे तो वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद हम कन्वेंशनल इंडियन मेथड्स को यूज करते हैं। हम ताली बजाते हैं, क्लैपिंग करते हैं, क्योंकि अच्छे डॉक्टर्स मुझे बताते हैं कि क्लैपिंग करोगे तो पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। उसके बाद ऋषि पतंजलि द्वारा हमें जो ज्ञान दिया गया है, योगा, प्राणायाम मैं लोगों के साथ करता हूं और यकीन मानिए सारा दिन इतनी एनर्जी रहती है, इतनी चुस्ती रहती है। मेरे कुछ मित्र कहते हैं कि शाम को ड्रिंक ले लो। मैंने कहा ड्रिंक लोगे तो 15 मिनट तक एनर्जी लेगी। मैं एक पैसा ड्रिंक पे खर्च नहीं करता। मैं बिना पैसा खर्च किए एनर्जी देता हूं, जो सारा दिन मुझे स्वस्थ रखती है, जोश में रखती है। और पैसा एक नहीं खर्च होता, जबकि वो जाके पैसा भी खर्च करते हैं और हेल्थ भी कहीं ना कहीं खराब करते हैं। बिल्कुल सर, थोड़ा पीछे जाने की कोशिश करते हैं। ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड टाइम हम थोड़ा सा उन मेमोरीज को भी चेरिश करेंगे कि हमारे जो पेरेंट्स होते थे, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, किस तरीके से हमारा ख्याल रखा जाता था, हमें टिफिन में क्या पैक करके दिया जाता था, हर एक चीज का ध्यान रखा जाता था कि हमें अपने बच्चों को बहुत हेल्दी चीजें देनी है। लेकिन आज का जो लाइफस्टाइल है वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। सर, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी आपने बात की। मेरे बचपन की बात करूं तो मुझे जो चीजें याद है, दादी माँ का बनाया हुआ पराठा, बिल्कुल, माँ की बनाई हुई चूरी, और सारी चीजें फ्रेश होती थी। हमारे बचपन में ये चीज होती नहीं थी कि कोई चीज 2 दिन पुरानी हो, 3 दिन पुरानी हो। फ्रेश चीजें होती थी, होममेड चीजें होती थी, और यकीन मानिए बहुत ही अच्छा उनमें स्वाद होता था, बहुत अच्छा लगता था। और साथ ही साथ घर में पैसा भी ज्यादा नहीं होता था, लेकिन वो खा के हम खुश होते थे। दिवाली आती थी तो दादी माँ और माँ घर के अंदर मिठाइयाँ बनाती थी, जो फ्रेश मिठाइयाँ होती थी, उनमें कोई केमिकल्स नहीं होते थे, किसी तरह के ये कलर्स इस्तेमाल नहीं होते थे जो शरीर को खराब करें। और खा के हम बहुत बहुत खुश रहते थे, बहुत बहुत आनंदित रहते थे। आज जब देखता हूँ युवाओं को 1200 रुपए का पिज्जा खा लिया, 500 रुपए की एक केमिकल ड्रिंक ले ली कि मेरे जो है डॉले बनेंगे, और डॉले बनेंगे तो मैं जो है लड़कियों को जाके दिखा सकूंगा कि हाँ मैं कितना युवा हूं और लड़कियां मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। तो वो एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमारा वो वक्त था जब यूनिवर्सिटी तक हम पढ़ते थे, मात्र एक बाइसाइकिल हुआ करता था और बहुत अच्छी सोच थी हमारे पूर्वजों की। बाइसाइकिल से सबसे पहले हमारी एक्सरसाइज होती थी, कसरत होती थी, खुद उसमें हवा भरते थे, जरूरत पड़ती थी तो पंचर वाले के पास अठन्नी देके पंचर लगवाते थे, और उसी ने हमें स्वास्थ्य दिया। आज जो हालात देख रहा हूँ, 30 लाख की गाड़ी, 40 लाख की गाड़ी, इवन कुछ जगह में दुख के साथ कहना चाहूंगा कि माँ जो है बच्चे की, उसके पिता को कहती है देखना कॉम्प्लेक्स आ रहा है, पड़ोसी के बेटे के पास तो ऑडी है, हमारे पास तो जो है कम पैसे वाली गाड़ी है, क्यों ना हम भी इसको जो है 50 लाख वाली गाड़ी लेके दे दें, 60 लाख वाली गाड़ी लेके दे दें। तो वो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को खुश नहीं कर रहे, हम अपने बच्चों को एक गलत डायरेक्शन में धकेल रहे हैं। मैं ये कहूंगा, हम अपने बच्चों को एक गलत डायरेक्शन में धकेल रहे हैं, उन्हें उस तरह की चीजें देके। हमें अपने बच्चों को उसी डायरेक्शन में लेके जाना है कि वो पार्क में जाएं, जॉगिंग करें, एक्सरसाइज करें, घर में माँ के हाथ का बनाया हुआ फ्रेश खाना खाएं। और ये क्या हालात हैं कि 15 साल के बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है, और वो कहाँ मनाया जा रहा है? 15 साल के बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा है एक बार में, एक नाइट क्लब में, कॉकटेल डिनर हो रहे हैं। ये क्या चीज है? हम बच्चों को किस दिशा में धकेल रहे हैं? कॉकटेल डिनर का वो करके 15 साल के बच्चे का जन्मदिन जब हम मनाते थे तो वो घर में मनाया जाता था, और घर में जो माँ और मौसी ने पकवान बनाए होते थे सब बच्चे उनको खाते थे। तो कहीं ना कहीं युवाओं को हम गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। इसीलिए बड़ा दर्द हुआ, बड़ा तकलीफ हुई
जब मैंने खुद देखा कि मेरे एक मित्र के बेटे को 27 साल की उम्र में हार्ट अटैक हुआ, उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। मेरा वो मित्र बहुत पैसे वाला है, 70 से 100 करोड़ के करीब का मालिक है, लेकिन अब मैं वो नेशनल चैनल पे बोलना नहीं चाहूंगा, उसको किसी ने बता दिया कि शादी हुई है, तो शादी होने के बाद ये चीजें आपकी शादी को कामयाब रखने के लिए बहुत जरूरी है। लोग समझ ही रहे हैं मेरा इशारा किस तरफ है। और उन चीजों का इस्तेमाल किया और क्या हुआ कि हार्ट बीट एकदम बढ़ गई और मृत्यु हो गई। किस तरीके से केमिकल्स के शेक बच्चे पीते हैं मात्र इसलिए कि मसल्स बिल्ड कर लें। तो वो हमें बच्चों को सही डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। पैसा इसलिए है कि बच्चों को बेहतर जिंदगी मिले, ना कि उस पैसे से हम बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर दें, जो कि गलती बहुत से माँ बाप आज के तरीके में कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आज हम वर्ल्ड डायबिटिक डे सेलिब्रेट करें। एक चीज यहाँ पूछना चाहेंगे, आज न्यू बॉर्न बेबी को भी डायबिटीज हो रहा है सर, इसके पीछे बेसिक रीजन तो सिर्फ यही बोला जाता है कि आप जंक फूड मत खाइए। तो सर जंक फूड का जो हम कह रहे हैं कि ट्रेंड आजकल बढ़ चुका है, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, इतने सारे ऑनलाइन ऑप्शंस आ चुके हैं कि किचन में एक लेडी, एक महिला एंटर करना पसंद नहीं करती। सुबह का ब्रेकफास्ट हो, दोपहर का लंच हो या रात का डिनर हो, वो जोमेटो या स्विगी के थ्रू ऑर्डर किया जा रहा है, जस्ट बिकॉज उनका कहना है कि हमारे पास टाइम की कमी है। सर आपको क्या लगता है कि ये सबसे बड़ा रीजन है जो आज एक न्यू बॉर्न बेबी को भी डायबिटीज हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों में हम ये प्रॉब्लम होते हुए देख रहे हैं? आपने एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारी बात कही है कि किचन में एक लेडी एंटर होना नहीं चाहती जी, वो चाहे लेडी हो चाहे मेल हो। क्यों किचन में नहीं एंटर होना चाहते? मैं तो ये चाहूंगा कि मैं खुद एक पिता हूं, बिल्कुल सर, कि आज की तारीख में माता को या पिता को, दोनों को ही अगर किचन में एंटर होके बच्चों के लिए खाना बनाना पड़े तो उसमें क्या दिक्कत है? वो तो गर्व का विषय है अपने बच्चों के लिए बनाना और अपने बच्चों को सिखाना। क्योंकि मैं आज अगर मेरी पत्नी किसी काम से जा रही है, मुझे नाज है कि मेरी पत्नी भी काम करती है, तो मैं खुद जो है रसोई में जाके चीज बनाना चाहूंगा ताकि मेरे बच्चे भी कल सीखें। मैं अगर पिता के रूप में या मेरी पत्नी माता के रूप में यही कहेगी ठीक है एसी ऑन कर लो और मोबाइल पे गेम खेलते हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चों के अंदर क्या आएगा कि फास्ट फूड जो है खाना है। मैं खुद इस चीज का मेरे सामने एक्सपेरिमेंट हुआ है कि सुबह 4 बजे बच्चे के साथ कहीं जाना था, तो मैंने कहा चलो मैं चाय बनाता हूँ, रादर क्योंकि पंजाब का हूँ मैं, दूध पत्ती हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट होता है वेयर वी मेक टी विदाउट एनी वाटर, दैट्स फुल मिल्क टी, वी कॉल इट दूध पत्ती। तो देखता हूँ बच्चा कहता है नहीं पापा चाय आ रही है, तो देखता हूँ एक रेस्टोरेंट से चाय आ रही है 400 रुपए के 2 कप। मैं उसे कहता हूँ कि 30 रुपए में घर में मैं दूध पत्ती बनाता जो पौष्टिक थी। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए वो शौक था और मुझे भी उस दिन सीखने को मिला कि बच्चे को सही राह पे लेके जाऊं कि चाय घर पे बनानी कितनी सुगम है, कितनी स्वादिष्ट है और सेहत के लिए कितनी जरूरी है। तो किचन में एंटर करना पिता की भी ड्यूटी है, माँ की भी ड्यूटी है, और साथ साथ बच्चों को भी रसोई में लेके जाएं ताकि बच्चों को सिखाएं कि किस तरीके से बेटा आप चाय बना सकते हो, किस तरीके से आप पराठा बना सकते हो, किस तरीके से चावल बना सकते हो। सिर्फ कॉफी का कप भी आज देखें तो 500 प्लस आता है, लेकिन बच्चे जो हैं उनको स्टारबक्स की कॉफी अच्छी लगती है, टीम हॉर्टन्स की कॉफी अच्छी लगती है, लेकिन घर की कॉफी, एक फिल्टर कॉफी में उनको टेस्ट नहीं आता। बहुत टाइम चेंज हो चुका है। सर एक चीज और पूछना चाहेंगे कि हम बात करते हैं हमारी इंडियन जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। कहते हैं हमारे यहाँ तो एक बच्चा अगर बीमार होता है या कोई भी एल्डर बीमार होता है तो विद इन अ मिनट एक कॉल पे डॉक्टर हमारे घर भी आ जाते हैं, या हम इजीली अप्रोच है कि हम उनको हॉस्पिटल तक ले जाते हैं। लेकिन सर इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज होने के बाद भी क्यों हमारे इंडिया में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही है? चाहे हम सडन हार्ट अटैक को देखें, बीपी को देखें, क्यों हो रहा है ये सब? बिल्कुल आपने सही कहा। अमेरिका में, कनाडा में जब अपने मित्रों से बात करता हूं तो बताते हैं कि उनको ये डिजीज हो गई और 6 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिली है, 8 महीने बाद उनकी सर्जरी होनी है। मेडिकल टूरिज्म आज क्यों बढ़ा हुआ है? कनाडा से, यूएस से जो है वहां के लोग, वहां के निवासी हिंदुस्तान आ रहे हैं सर्जरीज कराने के लिए, क्योंकि वहां वेटिंग पीरियड बहुत लंबा है। तो आज जो है मेडिकल हेल्थ के लिए हिंदुस्तान का सब जगह नाम है, लेकिन साथ ही साथ उस मेडिकल हेल्थ के सबसे बड़े ग्राहक भी हम बनते जा रहे हैं, मात्र इस वजह से कि लाइफस्टाइल हम भूल गए हैं। हेल्थ इज वेल्थ, पैसा कमाने में हम लगे हुए हैं, पैसा जरूर कमाइए लेकिन ये ना भूलिए कि हेल्थ इज वेल्थ। अब होता क्या है, जब अस्पताल में जाते हैं तो पता चलता है 30 लाख, 50 लाख, 70 लाख तक एक बीमारी के इलाज में खर्च होते हैं। ना सिर्फ वो पैसा खर्च करना पड़ता है बल्कि शरीर के ऊपर चाकू भी चलवाने पड़ते हैं उस बीमारी का इलाज करवाने के लिए। जी सर। तो हमें कहीं ना कहीं वो पुराने लाइफस्टाइल पे आना है कि बच्चों को समझाना है कि सुबह 5-6 बजे उठना है, रात को 10 बजे सोना है, घर का खाना खाना है, कसरत करनी है, फास्ट फूड की तरफ कम जाना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, और मी टू वाली मेंटेलिटी में कि मेरे दोस्त ने बियर पी थी तो मैं भी बियर पीऊंगा, नहीं।
वो कहीं ने ट्रेंड बनता जा रहा है जी कि वो तो बियर पी रहा है, तो वो तो बहुत हैप है, तो मुझे भी बियर पी के हैप बनना है, उस चीज से दूर रखनी है। मैंने जब अपने बच्चों को ऑब्जर्व किया बढ़ते हुए, तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे कुकिंग से दूर भाग रहे हैं। तो मैंने खुद अपने बच्चों को अपनी पत्नी के साथ मिलकर कुकिंग करना सिखाया, और आज मुझे खुशी है मेरे दोनों बच्चे आज यूएस में पढ़ाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो मुझे बना के भेजते हैं वहां से कि देखो हमने पराठा बनाया, हमने चावल बनाए, दाल बनाई, क्योंकि हिंदुस्तान में तो फिर खाना मिल जाता है, जी सर। वहां यूएस में वही खाना बहुत महंगा मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। मुश्किल से मिलता तो ग्लोबलाइजेशन के जमाने में आज हम बच्चों को सिखा रहे हैं, रादर वो यूएस में पढ़ते हैं तो अपने साथी संगियों को बना के खिलाते हैं, जी सर। और मुझे बताते हैं कि हमारे दोस्त बहुत से इसलिए बन गए हैं क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को पराठा बना के खिलाया है। तो वो चीज जो है हमें अपने बच्चों को सिखानी है, बिल्कुल सर। उनको वो कल्चर देना है जिस कल्चर से हम यूज टू हैं। पैसा है का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को जो है 50 लाख की 70 लाख की गाड़ी देके बच्चे को बिगाड़ दो। यस सर। पैसा है तो राष्ट्र निर्माण में खर्च करो, देश के लिए खर्च करो, बच्चे की एजुकेशन में खर्च करो, ताकि बच्चा देश का अच्छा नागरिक बन सके। बिल्कुल सर। एट लास्ट व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट मिशन स्वस्थ कवच? यू आर हियर इन लुधियाना, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो डीएमसी एंड हॉस्पिटल की तरफ से लिया गया कि हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं, उन्हें गाइड किया जा रहा है कि किस तरीके से हम एट अ सडन बीपी को मॉनिटर कर सकते हैं, सीपीआर दे सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो ये प्रॉब्लम है बीपी की, ये तो आज 98% पीक पे है सीपीआर। और कई बार तो ऐसे देखते हैं सीपीआर का प्रोविजन नहीं मिलता है, एट अ सडन लोगों की डेथ हो जाती है। लेकिन इस तरीके से ये जो खूबसूरत इनिशिएटिव है, हम लाखों लोगों की प्रेशियस जिंदगियों को बचा सकते हैं। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? I think as far as Swasth Kavach is concerned, it's one of the most beautiful and precious things. It's a gift to the society by Dr. Bishan Mohan and DMC, because what they are doing is they are training kids of the age of 12, 14. If there's a sudden heart attack, if there's a sudden issue in the society, in your house, you can save the patient, because we are always told if there's a heart attack, first aid is very important. Now these kids, they know how to give CPR so that the person can be sustained till he reaches the hospital. That's again a very good gift. Then what happens is, when the kids are being told about blood pressure, they are also being taught the negatives of blood pressure, how negative blood pressure can ruin their lives. So what happens is, a kid of 14 or 16 years, when he tries to get a pizza from his mobile, that thing comes to his mind. No, my mother has cooked 2 chapatis with gobi ki sabji. It would be very prudent in case I have aloo gobi or shimla mirch with roti and dahi, rather than having a 700 rupees pizza. Yes. That comes to his mind. Then it comes to his mind that if I get obese and tomorrow if I have to be hospitalized, because I have learned that means 20 lakh rupees of expenditure and lying at a bed. I won't be able to impress my girlfriend. If my girlfriend is told at the age of 22 that I am that unhealthy that I have to spend 20 lakh rupees and I have to lie on a hospital bed, I won't be able to impress her. I'll be able to impress her only if I'm healthy, if I am able to sustain my body, and if I know about the system around, and if I'm aware about the health. So that is, I think, Mission Swasth Kavach is a great boon to the society, and I asked Dr. Bishan Mohan, as our friend asked, that this Mission Swasth Kavach should not only be limited to Ludhiana, it should be spread in the entire state of Punjab, rather in the entire country. Mission Swasth Kavach should be spread. And I'll even request, since I visit the PM on a regular basis, I'll request the Prime Minister's office and central government also to join hands with Dr. Bishan Mohan and DMC, so that this could be spread throughout the country. The Bhangra which we are having, Yes, sir. of 50,000 students, this Bhangra should be done in the entire country, so that people celebrate in a healthy manner. Wow. And even people of 60 years of age, they are able to do Bhangra. वेरी नाइस। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। आपने देखा हमारे साथ जुड़े देश के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट में से आकाश जिंदल जी दिल्ली से लुधियाना तक पहुंचे। यहाँ आपको बताना चाहेंगे, बहुत गर्व से, बहुत प्राउड से कहते हैं हम पंजाबी हैं, और पंजाबी खाने की बात करें तो वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो आप सभी को सर की तरफ से और हमारे एंटायर टीम की तरफ से यहाँ जरूर कहना चाहेंगे, खाइए छोले भटूरे, बटर खाइए, घी खाइए, आप हेल्दी चीजें खाइए। हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाइए, घर का खाना खाइए। साथ ही साथ मिशन स्वस्थ कवच जो ये इनिशिएटिव आज लुधियाना में लिया गया है डीएमसी की तरफ से, जरूर फॉलो कीजिए, जुड़िए इस टीम के साथ, क्योंकि आने वाले टाइम पे हमारी जो जनरेशन है
वो हमें सिखाएगी कि किस तरीके से हम हेल्दी रह सकते हैं. इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू. थैंक यू सो मच.